Greetings to all the viewers and the guests of honor. Maths with Manya is a virtual platform on YouTube set up for serving students for free. On our virtual platform, basics are taught and it is the starting point for the trajectory of success for thousands of students and will be for many more. Our vision is learning by doing, or it can be also tagged as experiential learning. Growing mentally is one of the aspects of getting educated. Vartalap is a series of interactions with the eminent speakers on the topic which are very debatable among students. It's a great pleasure for me to introduce a speaker of the day who is going to talk on how to create success stories. This is a subject in which we all should be deeply interested. Our speaker, although has spent most of his entire career in motivating and counseling students in various schools of India as well as abroad. Please join in welcoming in our YouTube family Mr. Rishabh Rashi. Sir is also the founder of Yogic Karma and many more projects. Namaskar Manya, how are you? I'm very fine, sir. How are you? I'm great Manya. So it's a great initiative by you that you have undertaken, and like to see people at your age doing these kind of and commenting on these initiatives is very inspiring. First of all, many congratulations to you, Thank you, and sir. I hope you inspire many more people and students like you to start such initiative and like come out in the open and talk about themselves and do what they like. So yeah. So, sir, first I would ask you to talk about your project Yogic Karma in brief to tell about our viewers about it. Okay. So, Mana, Yogic Karma is based on a vision to Vasudeva Kutumbakam, which is to integrate this world into one family. So, mainly this name is to form communities of yogis worldwide and to have around 10 lakh yogis, 10 lakh yogi communities all across the world by 2024. So this yogic karma is a way of life in which every person can enhance and become a yogi and to take out the yogi within themselves and start living like a yogi, which is to live in a very high conscious zone. तो जब आप अपनी ज़िंदगी को एक बहुत अच्छे से समझ जाते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि आप एक योगी ही बन जाते हो। फिर आप चाहे गृहस्थ में रहो, आप be it your relationship, be it your studies, be it each and every aspect of your life, you start behaving like a yogi. So yogi is a person who has a very high sense of life, a very high Sounds consciousness. great, sir. So, before starting our today's topic of our वार्तालाप, पहले तो हम ये डिस्कस करना चाहेंगे जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो उस पे आपकी लाइफ का क्या इफेक्ट पड़ा है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं लॉकडाउन की वजह से, और जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा कि उसके बाद आपकी जो नॉर्मल लाइफ थी लॉकडाउन से पहले क्या वो फिर से रिज्यूम हो पाएगी? Uh, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ उन लोगों को दिक्कत होगी लॉकडाउन में जो लाइफ को जी ही नहीं रहे थे। हम जैसे लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हम जैसे लोग ढूंढते हैं प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी। तो मेरे लिए तो लॉकडाउन ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करी कि मैंने सारे अपने सिस्टम को अपनी इवन ऑफिस जो मेरे एम्प्लॉयज़ थे, जो मेरे इंटर्न्स थे, सबको मैंने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है। सब लोगों को मैं उनके घर से ही बैठ के सारे टास्क इंस्ट्रक्शन दे पा रहा हूँ। तो इस चीज़ की वजह से 3-4 बड़े अच्छे काम हुए हैं। पहली बात हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हुआ है कि हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा तो हमारी एनर्जी बहुत कंजर्व है। दूसरी चीज़ हम लोग एज़ कम्पेयर्ड कि लोग बोलते हैं कि आप ऑफ़िस में बड़े प्रोडक्टिव होते हो। मुझे लगता है कि अगर आपको वर्क फ्रॉम होम ढंग से अगर आप उन चीज़ों को टास्क को समझ लो, तो आपके पास और चीज़ें करने का भी टाइम मिल जाता है। तो जो और चीज़ों करने का टाइम है मैं कहूँ आपकी पर्सनल हॉबीज़, आपकी स्पिरिचुअल मेडिटेशन या आप कोई भी और प्रोसेस कर रहे हो। तो हमारे लिए तो यही लॉकडाउन अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया। तो लॉकडाउन के बाद जो होगा वो नॉर्मल होगा मैं नहीं समझता क्योंकि मेरे पास मुझे लगता है कि अब जो कोरोना आया है ये अगले 1 साल तक ऐसी सिचुएशन हमारी दुनिया में रहने वाली है कि हम लोग अब सोशल डिस्टेंसिंग वाले माहौल में रहने वाले हैं। दूसरा मास गैदरिंग्स होनी अब जैसे पहले होती थी अब वो हो मेरे ख्याल से
बहुत मुश्किल है। तो नॉर्मल जो लॉकडाउन में उन लोगों को दिक्कत आएगी जो लाइफ पहले ढंग से जी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो लाइफ जब जीते थे तब उन्हें लगता था कि कब छुट्टी होगी, जब छुट्टी उन्हें लंबी मिल गई तो उन्हें लग रहा है कब लाइफ होगी। हमेशा वो ये लोग होते हैं जो आगे भी सोचते रहते हैं कि अब मेरे पास ये है, मुझे आगे ये मिलेगा, कल को ये है तो मेरे पास तो ये मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आज है जो आपके पास है, आप अगर आज को अपने सुंदर कर सकते हो तो आने वाला कल भी सुंदर हो सकता है और सारी चीजें सुंदर हो सकती है। तो मेरे लिए अभी ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन में ही सबसे अच्छा टाइम है। जो कल होगा वो इस लॉकडाउन की जो आज मैं कर रहा हूँ उसकी वजह से डिफाइन है। कुछ सही बात है सर। जैसे पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए हमेशा, नेगेटिव थिंकिंग तो दूर ही रखनी चाहिए। तो जो हाँ जी, हमारा नेगेटिव टॉपिक, थिंकिंग दूर रखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप लाइफ को आप ये देखो कि अगर हम दोनों आज इस इंटरव्यू में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, क्या हम अपने टास्क में बिजी हैं या हमारे पास टाइम है ये सोचने का कि इससे क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव होगा? आज आप सोच पा रहे हो अभी इससे क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? नहीं, इसका रीजन है क्योंकि आप कंप्लीटली इन्वॉल्व हो अपने काम में, आपका पूरा ध्यान एक जगह पे है। तो जब आपका पूरा ध्यान एक जगह पे होता है तो आप अपने कर्म पे फोकस करते हो। आप फिर ये नहीं सोच रहे होते इसका पॉजिटिव क्या है इसका नेगेटिव क्या है। सिर्फ आपके पास आपका कर्म होता है, आप वही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। गोल ओरिएंटेड। यस। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वार्तालाप का मेन, वो है हाउ टू क्रिएट सक्सेस स्टोरी। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सक्सेस मीनिंग क्या है सक्सेस का, कि कब एक आदमी या कब एक स्टूडेंट हमारे जिसमें कब मान सकते हैं कि हाँ वी आर सक्सेसफुल। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इस क्वेश्चन से जूझ रहे हैं, या मैं कहूँ कि सबके मायने सक्सेस के अलग अलग हो चुके हैं। कई लोगों के लिए सक्सेस का मतलब होता है कब वो अपनी पहली गाड़ी ले लेते हैं। कई लोगों के लिए सक्सेस का मतलब होता है कब वो उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। कई लोगों के लिए होता है कि कब मैं अपना पहला घर ले लूंगा। तो आप देखोगे ये सक्सेस नहीं है। कई लोगों के लिए सक्सेस होती है कब उन्हें सोसाइटी क्लेम करेगी कि आप सक्सेसफुल हो, सोसाइटी बोलेगी, आपके पेरेंट्स बोलेंगे, वो दूसरों से रिवैलिडेशन ढूंढते हैं। पर इन दी एंड ये सारी चीजें इंडिविजुअल डिजायर्स है जो आप अपने माइलस्टोन्स अचीव करते हो, पर ये सक्सेस तो नहीं कह सकते। क्योंकि अगर आप देखो तो सक्सेस के मायने वो हैं जो दूसरे की लाइफ में आप वैल्यू ऐड कर रहे हो। अगर आपकी सक्सेस की वजह से, अगर जो आप कर रहे हो जिसमें आप सक्सेसफुल हो, अगर उसमें आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको फायदा हो रहा है, उनकी लाइफ अपलिफ्टमेंट हो रही है, तो आई कंसिडर इट अ रियल सक्सेस, नॉट हमारे जो योर पर्सनल स्टूडेंट्स, सक्सेस। जो व्यूअर्स है हमारे मेनली ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए आपके हिसाब से क्या सक्सेस होनी चाहिए? स्टूडेंट्स के लिए मेनली ये होना चाहिए कि जो उन्हें टास्क दिया गया है जिस भी चीज़ में, तो जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है या जो जो करना चाह रहे हैं उस चीज़ में डेडिकेटेडली फोकस होके अपना कार्य करें। और साइड बाय साइड इस लाइफ को जीने का एक ढंग समझें। ये लाइफ इज नॉट दैट सीरियस एज पीपल मेक आउट टू बी। यू नीड टू बी वेरी प्लेफुल अबाउट इट। यू नीड टू एंजॉय इट ऑन द गो। You should have make it a like a balanced approach in life. Like whatever you're doing, do it with a focused mind, with a completely involved mind. अगर आप कुछ चीज ऐसी करते हो जिसमें आपको रोक दी जाती है जो दूसरे के फोर्सफुली होती है, तो आप उस चीज से आपका मन हटने लगता है। तो मेरे लिए वो सक्सेस वही है कि आप जो भी कर रहे हो उसे आप अगर कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट के साथ कर रहे हो एंड अगर आप उसे एंजॉय करो, दैट इज सक्सेस। So no matter if it's moving out to be bringing out a good result or a bad result, it doesn't matter. कि हम लोग सक्सेस को काउंटर करते हैं एंड रिजल्ट से, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो तो एंड रिजल्ट अपने आप में मैटर नहीं करता, प्रोसेस मैटर। If you're enjoying learning things, then the result wouldn't matter. But what if अगर आप पेपर पेपर है 80 मार्क्स का, अगर आप 80 में से 80 भी स्कोर कर रहे हो और आप लर्निंग को एंजॉय नहीं कर रहे, तो वो कुछ फायदा नहीं है उसका। बिल्कुल। और 80 में से अगर आप 50 बिल्कुल भी स्कोर बिल्कुल कर रहे हो तो और लर्निंग एंजॉय कर रहे हो, तो इट वुड बी मोर फ्रूटफुल। बिल्कुल सेम। एक्चुअली मेरे साथ क्या होता था कि मैं जनरली स्कूल में कभी जिस तरीके से मेरे क्लास के जो टॉपर्स होते थे या मतलब जो पढ़ाकू बच्चे होते थे वो जिस तरीके से पढ़ते थे मैं कभी नहीं पढ़ता था। मैं एग्जाम के एक दो दिन पहले पढ़ता था। और जब
एंड में मार्क्स आते थे तो इवन टीचर सरप्राइज होते थे कि उसके इतना अच्छा नंबर कैसे आ गया। तो क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते थे। मैं क्लास के हमेशा या तो बाहर खड़ा होता था या फिर आपके जो शैतान बच्चे होते थे उनमें काउंटिंग होती थी। और जनरली हमेशा ही पढ़ाई में अच्छा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस प्रोसेस को एंजॉय करके करता था। मैं उसको कुछ ये नहीं अपने पे थोप नहीं लेता था कि मुझे ये करना ही करना है, मैं उसके पीछे पड़ जाता था, बर्डन नहीं बनाता था। एक चीज में आप में हमेशा एक बच्चे में जो सबसे मेन चीज होती है वो प्लेफुलनेस होती है। तो अगर आप उस प्लेफुलनेस को मेंटेन रखते हो थ्रू आउट हर टास्क में, so I think you are going to enjoy a good result also. That is going to come as an outcome. बिल्कुल मस्त मगर। हाँ। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है, अब कोई कैसे पता लगे कि व्हाट एम आई परफेक्ट है? अब कोई कैसे डिसाइड करेगी क्या मैं ड्रामा में अच्छा हूँ, क्या मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, क्या मेरे से साइंस चलेगी या नहीं चलेगी, क्या मेरे को कॉमर्स देनी चाहिए, ह्यूमैनिटीज देनी चाहिए? तो कैसे कोई डिसाइड करेगी व्हाट एम आई परफेक्ट? इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले मेरा सवाल है कि आपको परफेक्ट होना क्यों है किसी चीज में? क्या आप किसी चीज में परफेक्ट हो सकते हो? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका परफेक्शन का ही काम है तो इसका मतलब है कि आपने ये तय कर दिया कि मैं इसके आगे ग्रो नहीं करता हूँ। इट इज नॉट ट्रू। एक आप जो चीज कर सकते हो वो है कि आप ये ढूंढ सकते हो आपको किस चीज करने में मजा आता है। क्या वो चीज जो मैं कर रहा हूँ दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है? क्या वो राइट नाउ इज इट अ नीडेड टास्क? एंड इफ इट नीडेड यू शुड एंजॉय दैट टास्क बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ ग्रोथ। मतलब एंड तक भी अगर आप जाओ देखोगे चाहे वो कोई भी चीज हो उसमें नए नए स्कोप निकलते ही रहेंगे। आप परफेक्शन तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। If you even take out history, people with the highest IQ, be it Albert Einstein, Thomas Alva Edison, J. Newton, they achieved they achieved a great success. But even after their death, there were great revelations that were made in their field only. Be it gravitation, be it theory of relativity, be it other research fields. So there's always a scope of growth. There's no such thing as called as perfection. You should always strive for the excellence, for doing the great work in what you're doing, not for the perfection thing. So please exist ही नहीं करती उसके पीछे भागना क्यों? और जो हमारे नेक्स्ट है, अब देखो हम अगर एक किसी चीज में सक्सेसफुल हो गए तो कई बार क्या होता है, अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो हमारे एक्शंस जो होते हैं वो, अगर हम अगला टास्क करना चाह रहे हैं, करने जा रहे हैं, हाँ, तो वो हमारे एक्शंस की वजह से हम लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए जब हम सक्सेसफुल हो जाए? गुड। एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ज्यादातर लोग जो स्ट्राइव कर रहे होते हैं वो एक गोल को स्ट्राइव कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि इस गोल को अगर मैं डिफाइन कर लूंगा, इस गोल को मैं अचीव कर लूंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा, जैसे अभी तुम 12th क्लास में हो तो तुम्हारा अभी अल्टीमेट गोल होगा कि मुझे बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। या तुमने साइंस ले रखी है, हाँ, तो तुम्हें इंजीनियर या डॉक्टर बनना होगा। हाँ, तो टारगेट होगा कि अगर मैं ये कर लूंगा या ये कॉलेज मिल जाएगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो ये डेफिनेशन हमारी हमेशा रहती है। बट हम ये नहीं सोचते जब हम वो पहुंच जाएंगे उसके बाद क्या। तो हमेशा हमें सक्सेसफुल होने को जितना ज्यादा हम बड़ा कर सकते हैं अपनी डेफिनेशन को, कि मेरे सक्सेसफुल होने का मतलब है ये, अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो ये होगा, ना कि खाली इंडिविजुअल होगा। और जब आप वो सक्सेसफुल हो जाओ तो आपको फिर देखना चाहिए कि आप अब ऐसा क्या अच्छा ऐसा क्या क्रिएट कर सकते हो जो दूसरों की लाइफ में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा हो कि जब एक एंटरप्रेन्योर, आजकल एंटरप्रेन्योर बहुत फेमस है हर जगह, एंटरप्रेन्योर जब अपना स्टार्टअप बनाता है और जब उसे स्टार्टअप की फंडिंग मिलती है, वो स्टार्टअप की फंडिंग के बाद वो सोचता है कि अब मैं अगला ऐसी क्या चीज कर सकता हूँ जो इस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा कर सकती है। तो आपको जो भी चीज लाइफ में करनी है वो इंक्लूसिव करनी है। वो ऑर्गेनाइजेशन बना के एक तरीके से सक्सेसफुल होने के बाद सबसे पहली बात आपको सक्सेस की अपने डेफिनेशन बढ़ानी है कि जितने ज़्यादा लोगों को आप अपनी सक्सेस का पार्ट स्टोरी का पार्ट बना सकते हो उतना ज़्यादा बनाओ। बाकी स्टूडेंट लाइफ में सक्सेसफुल जैसा टर्म बेटर है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आपके पास सबसे अच्छी प्रोसेस होनी चाहिए। यू शुड एंजॉय द प्रोसेस दैट यू। वो
अगर आप सोसाइटी के बेसिस पे सक्सेसफुल की डेफिनेशन रखोगे तो सोसाइटी तो मतलब उसके लिए सक्सेस का कभी रास्ता नहीं होता। वो हाँ। हर चीज के लिए आपको 2 साल बाद 2 साल बाद 2 साल बाद की डेडलाइन देती है। हाँ। ये 2 साल कर लो, उसके बाद एंजॉय कर लेना, ये 2 साल कर लो, उसके बाद एंजॉय कर लेना, तो 2 साल कभी नहीं आते। हाँ। वो उन सक्सेसफुल लोगों के लिए भी नहीं आए जो लोग सक्सेसफुल हो गए, और हाँ। वो किसी के लिए भी आज तक वो किसी के 2 लिए साल भी नहीं आए। आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री है वो 2 साल कहाँ गए, तो 2 साल कहाँ पता है। ही नहीं कहाँ है। ये तो सब वही लोग बात उन्हीं है 2 साल कि को ढूंढ रहे हैं। बोल दे कि 10th में पढ़ लो, 10th में पढ़ लोगे तो आगे तो 11 12 किया, आगे तो आसान ही है। 10th में पढ़ लो तो ये एक बारी बोर्ड का रिजल्ट अच्छा ले आओ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक्चुअली हमारे एजुकेशन सिस्टम में चीजें ऐसे बनाई गई है कि जिसमें व्यक्ति को आगे की कहानी दिखाई जाती है कि आप आगे ये कर लो, आपका एंड रिजल्ट आएगा, आपको मार्क्स आने हैं। हमें ये नहीं कहा जाता कि आप इस प्रोसेस को एंजॉय करो, आप जो ये कर रहे हो उसको एंजॉय करो। उसका रीजन नहीं बताया जाता कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप ये करना है। एक बिल्कुल एक घोड़े की तरह नाल लगा के आपको बता दिया जाता है कि आपको साइंस लेनी है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, आपको कॉमर्स लेनी है, बिजनेस ये करना है, आपको ह्यूमैनिटीज लेनी है तो ये करना है। पर आज वो टाइम नहीं है। हाँ। आज वो टाइम नहीं है। आज बच्चे खुद अपनी फील्ड चूज कर रहे हैं। आज बच्चे नए नए स्कोप ऑफ एवेन्यूज देख रहे हैं, थैंक्स टू दिस डिजिटल रेवोल्यूशन दैट हैज बीन ब्रॉट ऑन। कि आज डिजिटल मीडियम में नई नई अपॉर्चुनिटीज खुल रही है। मैं देख रहा हूँ नए बहुत नए सारी। इंजीनियर्स यूट्यूबर्स बन रहे हैं, नए नए इंजीनियर्स ब्लॉगिंग कर रहे हैं। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, कोई ट्रैवलिंग कर रहा है। पीपल आर डूइंग व्हाट दे एंजॉयिंग राइट नाउ। वी शुड नॉट लिमिट। अगर जब हम एक बक्सा ला के दे देते हैं ना, कि मान लो बच्चे को हमने बक्सा ला के दे दिया, देखो ये बक्सा है, इसमें जितने खिलौने हैं यही आपके हैं, ये नहीं है। आप जब तक उसे ये नहीं बताओगे कि इस बक्से के बाहर भी दुनिया है, तब तक बच्चा बक्से के अंदर ही अपनी दुनिया को बना लेगा। तो इसे कहते हैं थिंकिंग इन द बॉक्स एंड थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स करना है। डोंट थिंक दैट, ऐसा सोचना चाहिए कि बॉक्स है ही नहीं, ऐसा सोचो कि बॉक्स ही नहीं है। तो डोंट थिंक आउट ऑफ द बिल्कुल। बॉक्स, थिंक लाइक द बॉक्स इज नॉट देयर। इसे लॉजिकली देखो, आप क्या बॉक्स एग्जिस्ट करता है। आप इतनी बड़े ब्रह्मांड में हो, आप इस बड़े ब्रह्मांड में छोटे से मतलब रेत के तिनके के बराबर भी नहीं। तो क्या ये अगर ब्रह्मांड का बॉक्स कंसिडर कर लो, और ब्रह्मांड का बॉक्स कहते हैं कि द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपैंडिंग, इट इज स्टिल ग्रोइंग। तो क्या असल में बॉक्स एग्जिस्ट करता है? कुछ नहीं एग्जिस्ट करता। बॉक्स है ही नहीं, असल में ही नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है। उस बॉक्स को बनाने का भी कोई फायदा नहीं है। तो हर स्टूडेंट को हमेशा हर चीज के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि इस चीज को मैं कैसे नई तरीके से कर सकता हूँ, कैसे और क्रिएटिवली कर सकता हूँ, कैसे यहाँ पे और अपनी मतलब जो चीज मुझे रास्ता दिखा दिया गया है वो तो सही है, मैं अपना रास्ता कैसे बना सकता हूँ। थिंकिंग स्फीयर को अपना ब्रॉड रास्ता करें। बनाना बहुत जरूरी है। थिंकिंग स्फीयर को और एक बिलीफ सिस्टम, अपने बिलीफ सिस्टम से मतलब जो कहते हैं, जो चीजें बता दी गई हैं उसके अलावा भी अपना रास्ता बनाएं। कि अगर आप अपना रास्ता बना के उस सॉल्यूशन तक पहुंचते हो, तो आप देखोगे आपने एक नई चीज खोज इन्वेंशन कर देते हो, और उसे ही आज के जमाने में हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? आज के जमाने में आप देखोगे इवन बच्चे 12th के बाद बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर की सिंपल जर्नी ये होता है कि अगर आप इस मोबाइल को ऐसे पकड़ना जानते हो, ठीक है, ये आज ये मेरा मोबाइल है, मैं इस मोबाइल को ऐसे पकड़ता हूँ, वो देखेगा कि क्या इस मोबाइल को पकड़ने का बेटर तरीका होगा, कुछ नई ऐप बना डालेगा, इसमें कुछ नया क्रिएटिविटी ला देगा, तो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस में ही अपना रास्ता क्रिएट कर देगा। इसी एंटरप्रेन्योर के उससे मेरे को याद है, हमारे स्कूल में एंटरप्रेन्योर क्लब्स है कि बच्चों को स्कूल से एंटरप्रेन्योर बनने की ट्रेनिंग देते हैं। एंटरप्रेन्योर क्लब्स है, जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो तो बच्चे चीजें बनाते हैं क्राफ्ट्स की, तो जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो स्टॉल्स लगवाते हैं बच्चे से, और वो बच्चा सेल करता है, उसके प्राइस बिल्कुल सेट करता है, प्रॉफिट कितना है, और वो पूरा सेल करता है कि हाँ आइए देखिए, मतलब परसुएट करना और ये सब पूरी मार्केटिंग स्किल्स बच्चे को सिखा देते हैं हमारे स्कूल। बिल्कुल, ये तो टाइम आज का चेंज, जो टाइम बदल रहा है उसकी नीड है ये। आजकल आप देखोगे कि आजकल लोग प्रैक्टिकल ज्यादा मांगते हैं, वो ये नहीं देखते थ्योरी। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत तेजी से बदल रहा है। इवन आप देखोगे अगले 1-1.5 साल में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत जो भी एजुकेशन सिस्टम में एग्जिस्ट करता है उसको पूरा बदल डालेगा। बच्चे क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम पुराने स्नैपशॉट का है, बहुत लंबे टाइम से फॉलो होता जा रहा है, जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं है।
आज के ज़माने में आप जो फिज़िक्स पढ़ते हो, क्या वो फिज़िक्स होती है? आप तो हिस्ट्री ऑफ फिज़िक्स पढ़ते हो, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी पढ़ते हो। कि ये आविष्कार उन्होंने किया था, ये उन्होंने किया था, उनके बारे में बताओ, ये सब क्या होता है? चाहे वो चीज गलत भी हो, बोहर्स थ्योरी चाहे गलत है तब भी पढ़ाते हैं, डाल्टन थ्योरी गलत है तब भी पढ़ाते हैं। क्योंकि आप किसी के चेंज कौन करे? चेंज हम इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? चेंज से डरता है। अगर कुछ भी आप आउट ऑफ द बॉक्स करोगे तो उसे डर जाएगा इंसान, क्योंकि उसने जो चीजें सीखी है वो इन द बॉक्स। तो इसलिए एंटरप्रेन्योर हमेशा जो आजकल स्कूल्स करवा रहे हैं वो लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स अपने बच्चे को सोचने की कोशिश करवा रहे हैं कि उन्हें भी अपने स्कूल में एग्जेम्पलरी स्टूडेंट चाहिए। उन्हें वो बच्चे चाहिए जो एग्जेम्पलरी रिजल्ट ला पाए, जो अगले बाइजू के फाउंडर, आपका रितेश अग्रवाल, ओयो के फाउंडर, ऐसे लोग क्रिएट कर पाए। स्टार्टअप इकोसिस्टम गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है आजकल, तो बस आपको एक नए आइडिया के साथ आना है और देखो आपका आइडिया फिर कैसे इंटरेस्टिंग, अगर आप में वो कैपेबिलिटी है तो बहुत अच्छा कर जाएगा। बट ये क्वेश्चन तो बहुत ऑब्वियस है, इसके बाद आना इस ग्राफ से हम ये डिनोट करना चाहते हैं कि इट इज ऑलवेज नॉट द लाइंस आर अप, द लाइंस विल गो डाउन आल्सो, so what should we do when the lines will go down? ओके, ये अच्छा, ये ठीक है, ये पीपीटी है। ठीक, मैं हमेशा इस चीज पे कहूँगा कि जब लाइन डाउन जा भी रही हो या लाइन अप भी जा रही हो, अगर आपने अपने अंदर की लाइन को स्ट्रॉन्ग रख रखा है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप अंदर से बैलेंस हो तो बाहर की सिचुएशन ऑटोमेटिकली बैलेंस होगी। फिर चाहे अगर आप का बाहर सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग जा रही है नहीं जा रही, आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं नहीं आ रहे, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप फिर बहुत खुश भी नहीं होगे, बहुत दुखी भी नहीं होगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आप अंदर से बैलेंस हो। वो जो आजकल जो बच्चों को जरूरत है वो अंदर से बैलेंसिंग की है। जैसे आजकल दिल्ली गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव चल रहा है, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट हैज दिस हैप्पी आवर्स, Happy which class. they make the students happy classroom, which they make the students meditate. And what is meditation? So that they can be in equilibrium with themselves. एक बहुत प्यारी एक उनमें पीसफुल स्टेट आ जाए जहाँ पे वो हर सिचुएशन को जो बाहर हो रहा है वो टैकल कर पाए, क्योंकि हम बाहर की वजह से हम अपना रिएक्शन देते हैं, जबकि होना आइडियली होता ही है हमारे अंदर जो स्थिति चल रही होती है वो बाहर को स्थिति को क्रिएट करती है। तो अगर आप अंदर से देखोगे, जब अंदर से हर बच्चा बैलेंस होगा तो हर बच्चा जो लाइंस नीचे भी जारी होंगी उनको भी रिएक्शन नहीं देगा, रिस्पॉन्स देगा। जो उस चीज को रिस्पॉन्स चाहिए होगा, जो वहां पे चीज पे सॉल्यूशन चाहिए होगा, आइडियल सॉल्यूशन देगा। तो आपको अंदर के अपने बैलेंस को बनाना है, और वो बैलेंस बनाने के लिए सबसे जरूरी जो मैं चीज बोलता हूँ वो है मेडिटेशन। हर स्कूल को अपने करिकुलम में मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस करना है। हाई स्कूल में तो फर्स्ट 15 मिनट्स डे की स्टार्टिंग मेडिटेशन से होती है और डे का स्कूल में एंड मेडिटेशन से ही होता है। और देखो आपने डिफरेंस देखा होगा कि जब आप मेडिटेट करते होगे तो कितना अच्छा दिन जाता होगा, और जिस दिन नहीं होती होगी ढंग से तो दिन कैसा दिन जाता होगा। कोई करता नहीं है स्कूल में सबको मजाक लगता है। तो मजाक है नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली सारी चीजें हमें बचपन से ही हमारे अंदर इंग्रेंड होनी चाहिए। इवन तो स्टूडेंट्स स्कूल्स को पेरेंट्स की भी क्लासेस लगानी चाहिए। पेरेंट्स को पहले मेडिटेशन सिखाओ, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाए। और बच्चे, क्योंकि आप स्कूल से ज्यादा समय घर पे बिताते हो, अगर वो एक कल्चर बनने लगता है, बिल्कुल, तो हमें कल्चर बनाना है जहाँ पे स्टूडेंट, पेरेंट्स और स्कूल तीनों का समावेश हो, तीनों साथ में मिलकर चल रहे हैं, एक सिनर्जी क्रिएट करनी है। आप कोई किसी चीज में अनसक्सेसफुल हो गए, किसी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, चलो फॉर एग्जांपल फिजिक्स में मोस्टली बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आए, मैथ्स में बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आए, हाँ, तो अगर अच्छे नंबर नहीं आ रहे, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो उस चीज को करने का मन नहीं करता। तो हम अपने आप को उस चीज को कैसे मोटिवेट करें कि हाँ ये चीज करो, ये चीज पढ़ो। गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैंने इसमें अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा देखा है कि ज़्यादातर फिजिक्स में तो थ्योरम्स बहुत होते हैं। हाँ। पहली बात तो 12th में तो थ्योरम्स भर भर के थ्योरम्स। तो इसमें अगर हम फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम फिजिक्स का लॉजिक समझ जाए, फॉर एग्जांपल किसी भी सब्जेक्ट का अगर हम लॉजिक समझ जाएं कि उस चीज़ के पीछे जो राइटर है या जो
बंदा जो बात बताना चाह रहा है वो कहना क्या चाह रहा है। तो अगर आप वो चीज़ समझ जाओगे तो आपको फिर उस चीज़ को इतना ज़्यादा दिमाग में रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपका दिमाग बड़ा अच्छा खासा खाली होगा, तो आप फ्रीली उस सब्जेक्ट को टैकल कर पाओगे। इवन अगर आप अनसक्सेसफुल होते हो, अगर ज़्यादातर मैंने ये देखा है जो बच्चे किसी सब्जेक्ट में अनसक्सेसफुल होते हैं, तो उसका मेन रीज़न होता है वो उस लॉजिक को ग्रास्प नहीं करते। वो या तो सब्जेक्ट के हाथों के पीछे पड़ जाते हैं कि अब कुछ अपनी कमजोरी समझ लेते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा। पहला तो आपने ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिया कि मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले तो अपने आप अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि है तो एक सब्जेक्ट जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वैसे ही एक नॉर्मल सब्जेक्ट है, अगर कोई और इसमें अच्छा कर सकता है तो मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। इवन फॉर दैट मैटर अगर आप परफॉर्म करते हो, आपका रिजल्ट नहीं आता, तो इट्स इज नथिंग टू बी डिस्करेज्ड अबाउट, क्योंकि आप देखोगे आपको एक ग्रोथ का चांस मिलता है वहाँ पे। एक इसे कहते हैं सिल्वर लाइनिंग। हर चीज के पीछे एक सिल्वर लाइनिंग होती है। तो मैं उस स्टेटमेंट को कहता हूँ, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी बिहाइंड एवरी प्रॉब्लम। आपको उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है। आपको ये देखना है कि अगर मेरे फिजिक्स में नंबर नहीं आए तो अब मैं क्या चीज बेटर कर सकता हूँ, इस चीज में मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मतलब कहाँ पे मेरी कमी थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, मेरे फिजिक्स में 11th क्लास में आई हैड अ रीटेस्ट था मेरा फिजिक्स में, और मेरे 12th में उसी सब्जेक्ट में अराउंड 93 आए थे। तो मुझे सिर्फ वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी समझ में आई कि अच्छा मैंने इस चीज़ का लॉजिक नहीं समझा था, अब मैं इसका लॉजिक समझ के थ्योरम डिराइव करूंगा। अब मैं इस चीज़ का लॉजिक पकड़ूंगा या इस चीज़ में मेरी ये कमी रहेगी। तो आपको सिल्वर लाइनिंग को पकड़ना है, वैसे से ज़्यादा आपको सिल्वर लाइनिंग को पकड़ना है। इसको हर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझना, प्रॉब्लम के पीछे अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, और सबको इस चीज को अपना मंत्र बना लेना है, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी बिहाइंड एवरी प्रॉब्लम। सॉल्यूशन सॉल्यूशन, बिल्कुल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। आपको बस जैसे तुमने बताया अपना थिंकिंग स्फीयर बड़ा करना है। अगर आप थिंकिंग स्फीयर बड़ा करते हो तो आपकी सोच बड़ी होती है, सोच बड़ी होती है तो आप सॉल्यूशन भी ज्यादा देख पाते हो प्रॉब्लम। अब लाइफ में तो बहुत बारी, मेरे साथ तो बहुत बारी होता है, विच पार्ट शुड आई चूज। लाइफ हमेशा ऐसे मोड पे लाके खड़ी कर देती है कि आपके पास दो रास्ते हैं कि इधर ये वाला रास्ता चूज करो या ये वाला रास्ता चूज। तो कैसे डिसाइड करें कि कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए, और ऐसा रास्ता चूज करें कि बाद में रिग्रेट भी ना हो रहे उस रास्ते पे जाके तो कुछ अच्छा हो। नहीं, ये सबसे ज्यादा नीडेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है 10th क्लास के बाद से। जब हम 11th में आते हैं, और जो 11th 12th का जो फेज होता है वो सबसे मेजर माना जाता है हमारे इंडियन एजुकेशन। तो उसमें सबसे जो आसान चीज आप कर सकते हो, सबसे पहले तो कि आप उस चीज को तलाशो जिसमें आपको लिटरली इंटरेस्ट आता है, आप उस चीज को इंजॉय करते हो। अगर आप उस चीज को एंजॉय करते हो तो आप देखोगे कि आप उस चीज को पूरा मन लगा के कर सकते हो। और जब आप किसी चीज को मन लगा के करोगे तो आप देखोगे कि आप उस चीज के अराउंड एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो आप एक हिस्टोरियन बन सकते हो। आप नई नई मतलब हिस्ट्री के अराउंड ही आजकल एंटरप्रेन्योर्स बन गए। आजकल कई लोगों ने हिस्ट्री चैनल चलाना स्टार्ट कर दिया, कई लोगों ने यूट्यूब पे हिस्ट्री बतानी स्टार्ट कर दिया है। आप इसमें कई लोगों को एजुकेट कर रहे हो उस हमारी देश की हिस्ट्री से, हमारे वर्ल्ड की हिस्ट्री से। तो सबसे पहले जो मेजर चीज है, आपको अपना इंटरेस्ट जानना चाहिए कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट आता है, फिर उस चीज में मन लगा के काम करना चाहिए आपको। मतलब अगर आप उस चीज में इंटरेस्ट नहीं आता और आपने ले ली, तो आप देखोगे चाहे आप उस चीज को कर लो, और एक आगे चल के आप उस चीज से डिटैच हो जाओगे और उस आगने वाले टाइम में छोड़ दोगे। तो अगर आप उसे छोड़ना नहीं चाहते तो आप पहले ही केस में वो चीज समझो जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, ताकि आप उसके साथ अपनी जर्नी को लंबा कर पाओ, और फिर उसके अराउंड आप बड़ा सॉल्यूशन क्रिएट करो। एक एंटरप्रेन्योर जर्नी आप वहाँ पे भी बना सकते हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। फिर अगर आपने उसमें ढंग से मन लगा के काम किया तो आप देखोगे वो फील्ड भी आपकी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, चाहे वो कोई भी हो। How to increase concentration? It's a very मतलब obvious question and it is a very जनरल क्वेश्चन कि कोई किसी से पूछते हैं अरे एग्जाम्स के टाइम पे कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज करें। सिंपल आंसर, डिक्रीज द डिस्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज द कंसंट्रेशन।
आप डिस्ट्रैक्शन कैसे डिक्रीज करें? देखो डिस्ट्रैक्शन कंसंट्रेशन का, माइंड को समझो, एक माइंड एक बंदर है। आपने बंदर देखा? बंदर एक जगह से एक डाली से दूसरी डाली को चलता रहता है। तो माइंड भी आपका वैसे ही है। माइंड क्या करता है, माइंड को एक थॉट पे टिकने की आदत नहीं होती, और जैसे ही उसे एक थॉट पे ध्यान लगाने को दोगे वो दूसरी थॉट पे कूद जाएगा। तो तुम्हें सिंपल चीज अगर ऐसी करिए, थॉट पे कूद जाएगा। तो तुम्हें सिंपल चीज अगर ऐसी करिए कि एक थॉट पे फोकस करना है, तो इसके लिए कुछ चीजें होती है जो आप प्रोसेस में इंक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप आंख बंद करके अगर आप कर सकते हो, सब लोग हाथ ऐसे बाइंड करके, इसे कहते हैं जोड़ के, ताकि एनर्जी अच्छे से फ्लो हो, और आलती फालती मार के बैठना है। आलती फालती मार के बैठो और आंख बंद करके अपनी ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है। क्योंकि आपने देखोगे कि ब्रीदिंग एक ऐसी चीज है जो रेगुलरली हो रही है आपकी लाइफ में। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, खा रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, ब्रीदिंग चल रही है। तो जब आप ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, आपका फोकस बढ़ता है। और अगर आपका फोकस बढ़ता है तो आप माइंड को, बंदर को एक पिंजरे में बांध कर सकते हो, क्योंकि ये बंदर है। अगर आपने बंदर को पिंजरे में बांध दिया तो अपने आप ही आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इसे हर डाली को चलने की आदत है, आपको इसे एक ही डाली पे रखना है। तो इसमें मैं इसे सिंपल सॉल्यूशन बताऊंगा। सबको आज ही से अपनी लाइफ में मेडिटेशन स्टार्ट करनी चाहिए, और ताकि उनकी लाइफ में एक तरीके का फोकस आए। तो मेडिटेशन आपको बहुत स्टेबल कंडीशन में ले आता है। हमारे टाइम पे इतनी फेमस नहीं थी। जब हम आज से 10-15 साल पहले जब लोग बात करते थे, तो कहते थे कि यार ये मेडिटेशन करता है, मतलब ऐसे देखा जाता था मेडिटेशन जैसे बहुत बेकार सी चीज है। और आज हर कोई मेडिटेट कर रहा है, पता ही नहीं इवन, बिल्कुल। तो मेडिटेशन बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, जिसे इवन डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, आज स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंड करते हैं। साइंटिफिक रिजल्ट्स हैं इसके। तो टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, decrease the distraction. To decrease the distraction, add more meditation so that you can capture the monkey in your mind. how to develop interest in something. How to develop interest in something? So, first of all, why do you want to develop interest in something? Why not to have interest in everything? अगर किसी चीज में आपको इंटरेस्ट करना है, अगर जैसे मुझे पबजी खेलने में इंटरेस्ट करना है, तो कैसे मैं डेवलप करूं पबजी खेलने में इंटरेस्ट? देखो, हमें जनरली ये देखना है कि हमें चीजों को सिलेक्टिव नहीं करना। मतलब अगर हम बचपन से ही ये ना कहें कि ये चीज मुझे अच्छी लगती है, ये चीज बुरी लगती है, ये चीज में मुझे इंटरेस्ट आता है, इस चीज में इंटरेस्ट नहीं आता, तो हमारा दिमाग चीजों को लाइक और डिसलाइक में नहीं बांटेगा। आप अगर कहो कि ठीक है, मुझे फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट कम है, तो किसी भी चीज में जब आपको इंटरेस्ट बढ़ाना है तो उसके लिए आपको अपने अंदर का देखना है कि आपका दिमाग ज्यादातर किस तरीके की थॉट्स सुनता है, या किस तरीके की थॉट्स आप सोचते हो ज्यादातर। अगर आपका क्यूरियस माइंड है तो आप देखोगे आप ज्यादातर हर चीज के पीछे का रीजन ढूंढ रहे होगे। यार हवा क्यों चलती है, आप बारिश क्यों होती है, ये क्यों होता है। तो आपका बड़ा एनालिटिकल माइंड है। आप देखोगे कि अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट आता है कि ये स्टॉक मार्केट ऊपर पे जाती है, इंडिया की इकोनॉमी कैसे चलती है, ये होता है, तो आपका इकोनॉमिक्स का माइंड है। अगर आपको कैलकुलेशन बहुत पसंद है, यार ठीक है, मैं डबल डबल कैलकुलेशन बहुत तेजी से करता था, कैलकुलेट 2 4 8 15 32 64 128 2 512 1024। तो ऐसे अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप मैथ्स में अपनी फील्ड बनाओ। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, जैसे आपको लगता है कि मान्या ज्यादातर मतलब नई चीजें बच्चों को सिखा सकता है, तो आपको टीचिंग लाइन में आना चाहिए। तो आपको देखना है आप में ज्यादातर किस तरीके की थॉट्स चलती रहती है। उस थॉट्स को अगर आप एक पेपर पे एक दिन बैठ के लिखोगे कि मैं ये सोचना ज्यादा पसंद करता हूँ, तो ओवर द पीरियड आप देखोगे तो ये तो मुझे लगता है मेरा फिजिक्स में इंटरेस्ट है, मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट है। फिर आपको तीसरे बंदे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मान्या आपको फिजिक्स चूज करनी चाहिए, फिर आप खुद ही बता पाओगे
मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है, क्योंकि मैं ज्यादातर किसी चीज की तरफ इंक्लाइंड रहता हूँ। फिर से केस में वही ले लो कि आपके साथ पास एक बंदर के पास बहुत सारे केले रखे हैं, केले सारे अच्छे हैं, केले का साथ सबका सेम है, पर बंदर को अपने कलर और उसके हिसाब से देखना है, साइज के हिसाब से, उस चीज के हिसाब से उसका कौन से केले की तरफ इंटरेस्ट है, जो केला उसे पसंद है उस केले को उठा के उसे खाना चाहिए। तो चॉइस बंदर के पास ही है, सामने वाला आके सिर्फ आपको अपनी चॉइस बता देगा कि देखो तुम्हें ये केला उठाना है, ये केला उठाना है। अगर आपने शुरुआत में ही अपनी चॉइस का केला उठा लिया तो आप हमेशा इस केले को एंजॉय करोगे, वरना फिर ये केला कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर देगा फिर। And the last, I think it is my side versus society's side. It is the most common question which students discuss among themselves, and we also discuss among themselves. My side versus society side. अरे मैं तो देखता हूँ कि मेरे इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे 80 में से 60 नंबर आ रहे हैं, मेरे लिए तो बहुत है, बहुत अच्छे। हाँ, और सोसाइटी को क्या है, 80 में से 60 तो इवन भी नहीं हुआ। हाँ, तो it is very controversial. तो इसमें सिंपल सा है, सोसाइटी किससे बनती है? सोसाइटी हम जैसे लोगों से ही बनती है। तो अगर हम माई साइड को सोसाइटी की साइड से मिला दें, हम कहें आर साइड, ना कि माई साइड ना सोसाइटी साइड, आर साइड। तो आर साइड में आप देखोगे कि अगर आपने सोसाइटी को भी अपने तरीके से एजुकेट कर दिया कि ठीक है किसी के नंबर ज्यादा आ गए, किसी के ये हो गया, तो व्हाट, आजकल नंबर कहाँ पैरामीटर है। आजकल तो इवन जल्दी दिल्ली यूनिवर्सिटी भी सिस्टम हटाने वाला है कि वो नंबर का सिस्टम ही हटा देगा, क्योंकि आप देखोगे जब आप आईआईटी से निकलते हो तो आईआईटी में सिलेक्शन के लिए आपको भले ही नंबर चाहिए, पर आईआईटी के टाइम आईआईटी में बच्चा 5 सीजीपीए लाए चाहे 10 सीजीपीए लाए, डिग्री तो उसे आईआईटी की मिलेगी। ठीक है, तो मेन चीज है हमें सोसाइटी को और माई साइड को और आर सोसाइटी को साइड को आर साइड बनाना है, ताकि सोसाइटी में कंपटीशन ना रहे, कोलैबोरेशन की भावना रहे, कि मेरा बच्चा और उसका बच्चा भले ही नंबर उसके ये आए, हम उसे भी एंकरेज करें, हम उसको भी आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन दें, ना कि ये बोले कि तेरे नंबर कम आए, इसके नंबर ज्यादा है। हम उसके अंदर ये देखें कि ठीक है इसके रीजन ये है, इसके नंबर इसलिए कम आए, तो हमें आर साइड को स्ट्रॉन्ग करना है और माई साइड और सोसाइटी के साइड को वीक करना है। अगर हमने माई साइड सोसाइटी साइड को वीक कर दिया और आर साइड को स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो सोसाइटी में हम ही जैसे लोगों से बनती है, तो हम लोग को सोसाइटी के लोगों को एनकरेज करना है कि वो कोलैबोरेट करें, ना कि एक दूसरे से कम्पीट करें। अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ देख रहा है तो इसे रिवाइंड करो और फिर से सुनाओ। नहीं, पेरेंट्स को सबको यही बोलना है कि आपको बच्चों को अपना मतलब अपने अनड्यू प्रेशर नहीं डालना, आपको बच्चों की स्टोरी को समझना है, आपको बच्चों की साइड शूज में रख के उस चीज को देखना है कि उस टाइम पे वो बच्चा कैसे डील कर रहा है उस प्रेशर के साथ। क्योंकि हम पेरेंट्स एज अ पेरेंट हमें लगता है कि पढ़ाई तो है हर कोई कर लेता है, पर हम नहीं समझ पाते कि उस टाइम पे उस बच्चे की सिचुएशन क्या चल रही होती है। हम बच्चे के शूज में कभी कदम पैर रख के नहीं देखते कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। तो हमें बच्चे को सही वैल्यू सिस्टम पे एनकरेज करना है कि बच्चा एंजॉय करे हर चीज को जो भी कर रहा है, हर चीज को फोकस के साथ करे। फोकस का रीजन मैंने बताया, पेरेंट्स को भी मेडिटेट करना स्टार्ट करना चाहिए ताकि वो कल्चर आए कंसंट्रेशन का पूरी फैमिली में। और फिर टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को साथ में मिलके प्रोग्रेस करना चाहिए, क्योंकि तीनों एक दूसरे से कोई अलग नहीं है। पेरेंट्स भी आपका जर्नी का पार्ट है, टीचर्स भी पार्ट है, स्टूडेंट्स भी पार्ट है। और फिर सोसाइटी को कोलैबोरेट करना चाहिए, बच्चों को आपस में कंपटीशन की भावना हटानी चाहिए, वरना सबको ये लगता है कि जो फर्स्ट आया वही अच्छा है और जो सेकंड थर्ड आया उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं। तो उसे ये नहीं मालूम कि जो टेंथ भी आता है वो भी आगे चल के आजकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का हेड या कंपनी क्रिएट कर देता है। और ज्यादातर लोग तो वही हैं जो 10th मतलब पढ़ाई करने से पहले ही बाहर चले गए, चाहे वो रितेश अग्रवाल, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स। इसी बात पे एक एग्जांपल भी है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल से निकाल दिया था। उसने बोला था कि आपका बच्चा इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है कि वो हमारे स्कूल में पढ़ सके, पर उसकी मदद ने बोला कि जो लेटर आया स्कूल से वो ये लिखा है उसने कि आपका बच्चा इतना ज्यादा अच्छा है कि वो हमारे स्कूल के लेवल के साथ मैच नहीं कर सकता था, आप इसलिए इसको घर में पढ़ा। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कितने ज्यादा इन्वेंशंस करे वो तो हम लोग बताइए। बिल्कुल बिल्कुल।
इसलिए कहते हैं कि जो ज्वारी एक तो हीरे की जो कीमत होती है ना, ज्वारी ही समझ सकता है, असली ज्वारी जो होता है। तो अगर जो असल जो एक टीचर होता है वो जानता है कि हर बच्चे के अंदर एक बहुत प्रतिभाशाली टैलेंट छुपा हुआ है, बस वो ये जानता है कि जर्नी सबकी अलग अलग है, पर वो इसलिए हर बच्चे को उसे इक्वल फोकस देके वो करना चाहिए, चाहे जिसके कम नंबर आए जिसके ज्यादा आए। पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता और सक्सेस के पैरामीटर सबके एक जैसे नहीं होते। अपने सक्सेस को ज्यादा वाइडन करो, ज्यादा अपने सक्सेस में चीजों को ज्यादा इंक्लूड करो, ताकि आप समझ पाओ कि success is more than the money and more than the job that you earn at the end of the day. It is about affecting others' lives. Your value in others' life. Contribution. Yes, your value in others' lives. Contribution ही main चीज है. At this, we are ending our series of Vartalap this. At the last, we would like to say all our viewers that you can't miss it. हटा दो और बोलो you can do your best and rise and shine. At the last, we would like to give you our contact details. You can contact us by writing us an email on mathswithmanya@gmail.com, and on all social networking sites, our pages are there. You can follow us there. You can comment in any of the YouTube videos of our channel. We would surely revert you back. Thank you, sir, for your valuable time and your guidance. Your words were very true. Thank you, Manya. And if anyone wants to get in touch with me, they can contact me on even Facebook and Instagram. You can share the details. Yes, sir. And so that it is there in the team can description get in touch with them. Okay, Manya. ठीक है, Manya. Thank you. Thank you.